آخری لوکیشن، وہ سواری جو کبھی منزل تک نہیں پہنچی۔ کراچی کی بارش زدہ رات تھی، جولائی 2026 کا آخری ہفتہ۔ سڑکیں تقریباً سنسان تھیں اور رات کے 2:30 بج چکے تھے۔ فہد جو پچھلے 4 سال سے آن لائن بائک رائیڈر تھا، اپنی آخری رائڈ کے انتظار میں ایک چائے کے ہوٹل کے باہر کھڑا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت آنے والے زیادہ تر رائڈز اسپتال، ریلوے اسٹیشن یا ایئرپورٹ کی ہوتی ہے۔ اچانک فون پہ نوٹیفیکیشن آیا، پک اپ گریو یارڈ روڈ سیکٹر 9، ڈیسٹینیشن ہڈن۔ فہد کو حیرانی ہوئی، یہ پہلی بار ہے کہ منزل چھپی ہوئی ہے۔ اس نے سوچا شاید ایپ کا نیا فیچر ہوگا اور رائڈ قبول کر لی۔ 5 منٹ بعد وہ قبرستان والی سڑک پر پہنچ گیا۔ وہاں مکمل خاموشی تھی، نہ کوئی گاڑی، نہ کوئی انسان، نہ کوئی آواز۔ بس دور ایک بجلی کا کھمبا تھا جس کی لائٹ بار بار جل بجھ رہی تھی، اور اسے اس مدھم روشنی میں ایک عورت نظر آئی، کالا عبایا، سر جھکا ہوا اور ہاتھ میں پرانا سفید بیگ۔ وہ آہستہ آہستہ اس بائک کے قریب آئی، بغیر کچھ کہے پیچھے بیٹھ گئی۔ فہد نے سلام کیا، کوئی جواب نہیں۔ اس نے دوبارہ پوچھا، میڈم لوکیشن کنفرم کر دیں۔ خاموشی، صرف ایک ٹھنڈی سی سانس کی آواز، جیسے کسی نے اس کے کان کے قریب آ کر آہا بھری ہو۔ فہد نے دل مضبوط کیا اور رائڈ شروع کر دی۔ چند منٹ بعد اسے محسوس ہوا کہ موبائل کا GPS بار بار راستہ بدل رہا ہے، کبھی بائیں کبھی دائیں۔ پھر اچانک اسکرین پر ایک لائن نمودار ہوئی، راستہ وہی ہے جو تمہیں دکھایا جا رہا ہے۔ فہد نے حیرت سے اسکرین دیکھی، یہ ایپ کا عام میسج نہیں تھا۔ اس نے فوراً ایپ بند کر کے دوبارہ کھولی، مگر اب اسکرین پر صرف ایک ہی چیز لکھی تھی، پیچھے مت دیکھنا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ بار بار خود کو سمجھاتا رہا، شاید فون خراب ہو گیا ہے۔ اسی لمحے اس کے کان کے قریب ایک دھیمی سی آواز آئی، اگر پیچھے دیکھا تو میں نظر آ جاؤں گی۔ فہد کا سانس رک گیا۔ یہ پہلی بار تھا کہ عورت نے کچھ کہا تھا۔ اس نے ہمت کر کے شیشے میں دیکھنے کی کوشش کی، لیکن عین اسی لمحے شیشہ خود بخود نیچے کی طرف جھک گیا، جیسے کسی نے جان بوجھ کر اسے گھما دیا ہو۔ بارش تیز ہو گئی، سڑک پر پانی جمع ہونے لگا، اور پھر اس کے فون پہ ایک نئی نوٹیفیکیشن آئی، وارننگ، پیسنجر ڈائیڈ 11 منتھ اگو۔ فہد نے زور سے بریک لگائی، بائک رکی۔ اس نے ہمت کر کے پیچھے مڑ کے دیکھا، سیٹ خالی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے اپنے کندھے پہ کسی کے برف جیسے ہاتھ کا لمس محسوس کیا اور ایک سرگوشی سنائی دی، رائڈ ابھی ختم نہیں ہوئی۔ فہد کے کندھے پہ رکھا وہ برف جیسا ہاتھ اچانک غائب ہو گیا۔ وہ خوف سے کانپتے ہوئے بائک سے اترا اور پیچھے دیکھا، سڑک خالی تھی، بارش اب بھی برس رہی تھی، مگر عجیب بات یہ تھی کہ اس کے ارد گرد بارش کے قطرے جیسے آہستہ آہستہ گر رہے تھے، جیسے کہ وقت کی رفتار بدل گئی ہو۔ اس نے جلدی سے فون اٹھایا، رائڈ اب بھی چل رہی تھی، ڈسٹنس ریمیننگ 2 کلومیٹرز، مگر منزل کا نام ابھی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے رائڈ کینسل کرنے کی کوشش کی، پر انگلی رکھی تھی کہ فون کی کینسل رائڈ اسکرین سیاہ ہو گئی۔ پھر صرف ایک جملہ نمودار ہوا، اب واپسی ممکن نہیں۔ فہد نے گھبرا کر فون جیب میں رکھا اور پوری رفتار سے بائک بھگا دی۔ چند منٹ بعد وہ ایک پرانے ویران پل کے قریب پہنچا۔ پل کے درمیان ایک پولیس کی زنگ آلودہ بیریئر کھڑی تھی، جس پر سرخ رنگ سے لکھا تھا، یہ راستہ بند ہے۔ فہد نے بائک روکی۔ اچانک پیچھے سے اسی عورت کی آواز آئی، رکو مت، وہ آ جائے گا۔ فہد نے فوراً پل پار کر لیا۔ پل کی دوسری طرف پہنچتے ہی موبائل خود بخود بجنے لگا۔ اسکرین پر کوئی نمبر نہیں تھا، صرف لکھا تھا، ان نون پیسنجر۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے کال اٹھائی۔ دوسری طرف سے ایک بوڑھی کی آواز آئی، اگر تم یہ کال سن رہے ہو تو تم 7ویں رائڈر ہو۔ فہد کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ کون بول رہا ہے؟ بوڑھی آواز آئی، 1 سال پہلے اسی سڑک پر ایک لڑکی کا خوفناک ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ اس رات بھی ایک رائڈر اسے لے جا رہا تھا، دونوں لاپتہ ہو گئے۔ اس کے بعد جو بھی رات کے 2:30 سے 3 بجے کے درمیان اس لوکیشن سے رائڈ قبول کرتا ہے،
वो चंद दिन बाद गायब हो जाता है। फहद कुछ पूछने ही वाला था कि कॉल अचानक बंद हो गई। उसी लम्हे उसके फ़ोन पे एक फोल्डर खुद ब खुद खुल गया। उस फोल्डर का नाम था लास्ट राइडर्स। अंदर 6 तस्वीर थी। हर तस्वीर में एक मुख्तलिफ बाइक राइडर था। तमाम तस्वीर के नीचे एक ही लफ्ज़ लिखा था, मिसिंग। फहद ने 7वीं तस्वीर पर नज़र डाली। उसका दिल धड़कना भूल गया। 7वीं तस्वीर उसकी अपनी थी। हालांकि ये तस्वीर कभी उसने खींची ही नहीं थी। तस्वीर में वो उसी पुल पे खड़ा था और उसके पीछे अंधेरे में 2 सुर्ख आंखें उसे घूर रही थीं। उसी लम्हे उसने पीछे किसी भारी कदमों की आवाज़ सुनी। वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ रही थी। फहद ने हिम्मत करके पलट कर देखा और जो चीज़ उसके सामने खड़ी थी वो इंसान नहीं थी। फहद के सामने खड़ी वो हस्ती तकरीबन 7 फीट लंबी थी। उसका पूरा जिस्म स्याह बारिश में भी वाज़े नज़र नहीं आ रहा था, जैसे रोशनी उस तक पहुंची ना रही हो। उसका चेहरा तो था ही नहीं, सिर्फ एक स्याह खला, और उस खला के अंदर 2 जलती हुई सुर्ख आंखें। वो आहिस्ता आहिस्ता फहद की तरफ बढ़ने लगी। उसके कदमों की आवाज़ पुल पर गूंज रही थी। फहद ने घबराकर बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की। 1 बार, 2 बार, 3 बार, लेकिन इंजन ने जवाब नहीं दिया। अचानक उसके फ़ोन पर एक नया पैगाम आया, मत भागो, ये तुम्हें हर जगह ढूंढ लेगा। फहद ने सर उठाया तो वो हस्ती सिर्फ चंद कदम के फासले पर थी। उसी लम्हे वो अबाया वाली औरत अचानक सामने आ गई। पहली बार उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया। फहद के दिल की धड़कन रुक गई। उस औरत का चेहरा जख्मी था, मगर आंखों में खौफ नहीं, इल्तिजा थी। वो धीमी आवाज में बोली, ये मेरा पीछा नहीं कर रहा, ये उस शख्स को ढूंढ रहा है जिसने मुझे मारा था। फहद हैरान रह गया। तुम कौन हो? औरत ने आहिस्ता से कहा, मेरा नाम मरियम था। 1 साल पहले मैं इस सड़क पर जिंदा थी, मगर मैं हादसे में नहीं मरी, मुझे कत्ल किया गया था। फहद के रोंगटे खड़े हो गए। फिर सबने हादसा क्यों कहा? मरियम की आंखों में आंसू बहने लगे, क्योंकि कातिल बहुत ताकतवर था। पुलिस ने फाइल बंद कर दी और सच कब्र में दफन कर दिया। इतने में वो स्याह हस्ती जोर से चीखी। उस चीख से पुल लरज़ उठा। फहद के फोन की स्क्रीन खुद ब खुद रोशन हुई। उस पर एक पुरानी वीडियो चलने लगी। वीडियो में बारिश हो रही थी। एक सफेद गाड़ी तेज रफ्तार से आ रही थी। गाड़ी अचानक रुकी। 2 आदमी बाहर निकले। उन्होंने एक जख्मी लड़की को सड़क के किनारे धक्का दिया। लड़की जिंदा थी। वो मदद के लिए हाथ उठा रही थी, मगर दोनों आदमी वापस गाड़ी में बैठकर चले गए। वीडियो वहीं खत्म हो गई। फहद ने हैरत से मरियम की तरफ देखा। ये तो तुम थी। मरियम ने खामोशी से सर हिलाया। और अब हर वो शख्स जो इस रास्ते से गुजरता है, उसके सामने सच लाना मेरी आखिरी उम्मीद है। उसी लम्हे फहद के फोन पर एक नई नोटिफिकेशन आई। नाउ राइड रिक्वेस्ट, पैसेंजर नेम अननोन, पिकअप लोकेशन यही पुल, डेस्टिनेशन कातिल का घर। फहद ने स्क्रीन को घूरते हुए महसूस किया, इस बार फैसला सिर्फ एक राइड कबूल करने का नहीं, बल्कि एक ऐसे राज का था जिसे छुपाने के लिए कई लोग अभी भी जिंदा थे और शायद कत्ल करने के लिए भी तैयार थे। फहद काफी देर तक फोन की स्क्रीन देखता रहा। डेस्टिनेशन कातिल का घर। उसकी उंगली बार बार एक्सेप्ट राइड के बटन के करीब जाकर रुक जाती। आखिर उसने हिम्मत की और राइड कबूल कर ली। उसी लम्हे फोन की स्क्रीन पर एक पत्ता जाहिर हुआ। गुलशन मेमार, गली नंबर 17, बंगला नंबर 46। फहद ने हैरत से नक्शा देखा। यह कराची का वो इलाका था जहां वो कई बार जा चुका था, मगर अजीब बात यह थी, जैसे ही उसने बाइक आगे बढ़ाई, सड़कें बदलने लगी। हर मोड़ एक जैसा, हर गली सुनसान, और हर बिजली का खंबा एक ही जैसा लग रहा था। लगता था जैसे वो एक ही जगह बार बार घूम रहा हो। तकरीबन 20 मिनट बाद अचानक सब कुछ मामूल पर आ गया। उसके सामने एक पुराना सफ़ेद बंगला खड़ा था, नंबर 46। बंगले के तमाम दरवाजे बंद थे, लेकिन ऊपर वाली मंजिल की एक खिड़की से हल्की सी जर्द रोशनी आ रही थी। फहद ने दरवाजे पे दस्तक दी। चंद लम्हे बाद तकरीबन 60 साल का एक शख्स बाहर आया। सफ़ेद दाढ़ी,
साफ सुथरे कपड़े और चेहरे पे अजीब सी मुस्कुराहट। बेटा, इस वक्त? फहद ने झूठ बोल दिया। सर, आपके नाम से एक पार्सल आया था। बूढ़ा चंद लम्हे खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये कहते ही उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। अचानक पूरे घर की बिजली बंद हो गई। घुप अंधेरा, सिर्फ फहद के फोन की रोशनी बाकी थी। उसी रोशनी में उसे दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर नजर आई। वो तस्वीर देखकर उसके हाथ कांपने लगे। तस्वीर में वही लड़की मरियम, मगर वो अकेली नहीं थी। उसके साथ यही बूढ़ा शख्स खड़ा था और नीचे लिखा था, मेरे प्यारे अब्बू के साथ 2025। फहद के जहन में जैसे धमाका हुआ, ये मरियम का बाप है। अचानक बूढ़े ने धीमी आवाज में कहा, लोग समझते हैं मेरी बेटी मर गई है, मगर हर रात वो वापस आती है और उस दिन का इंतजार कर रही है जिस दिन असल कातिल खुद उसके सामने आएगा। फहद कुछ पूछता उससे पहले ही ऊपर वाली मंजिल से किसी भारी चीज के घसीटने की आवाज आने लगी। बूढ़े के चेहरे का रंग उड़ गया। वो कांपती आवाज में बोला, नहीं, आज नहीं, वो नीचे आ रही है। फहद ने सीढ़ियों की तरफ देखा। अंधेरे में दो सुर्ख आंखें आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, और इस बार वो मरियम नहीं थी। सीढ़ियों पे वो सुर्ख आंखें चंद लम्हे के लिए रुक गई। पूरे घर में ऐसी खामोशी छा गई कि फहद की अपनी धड़कनें भी तेज सुनाई देने लगी। फिर अचानक भारी कदमों की आवाज सीढ़ियों से नीचे आने लगी। बूढ़े ने फौरन फहद का बाजू पकड़ा। इधर आओ, जल्दी। वो उसे एक छोटे से स्टोर रूम में ले गया और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। बाहर कदमों की आवाज करीब आती जा रही थी, फिर दरवाजे के बिल्कुल सामने आकर रुक गई। फहद ने सांसें रोक ली। अचानक दरवाजे में 3 जोरदार दस्तक हुई। उसके बाद एक लड़की की धीमी आवाज आई, अब्बू, दरवाजा खोल दें। बूढ़े की आंखों में आंसू बहने लगे। वो सरगोशी में बोला, ये मेरी बेटी की आवाज नहीं, जो भी है हर रात इसी आवाज में मुझे बुलाता है। फहद के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। कुछ लम्हे बाद बाहर मुकम्मल खामोशी छा गई। बूढ़े ने आहिस्ता से दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर पानी से बने कदमों के निशान ऊपर वाली मंजिल की तरफ जा रहे थे। वो हमें ऊपर बुला रहा है, बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा। दोनों आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां चढ़ने लगे। ऊपर एक कमरा था जिसमें जंग आलूदा ताला लगा हुआ था। बूढ़े ने जेब से पुरानी चाबी निकाली। 1 साल से मैंने ये कमरा नहीं खोला। चाबी ताले में घूमते ही दरवाजा खुद ब खुद चिड़चिड़ाता हुआ खुल गया। कमरे में हर चीज पर गिर्द जमी हुई थी। एक बिस्तर, एक मेज और दीवार पर मरियम की दर्जनों तस्वीर। लेकिन एक चीज ने फहद को चौंका दिया। मेज पर एक डैश कैमरा रखा था। उसमें मेमोरी कार्ड अब भी मौजूद था। फहद ने उसे अपने फोन से जोड़ा। वीडियो चलते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। यह हादसे वाली रात की असल रिकॉर्डिंग थी। उससे साफ दिखाई दे रहा था कि मरियम किससे जान बचाकर भाग रही थी। अचानक एक सफेद गाड़ी उसके सामने रुकी। गाड़ी से 2 आदमी उतरे। उनमें से एक चेहरा वाज़ेह था और उसे देखते ही बूढ़ा जमीन पर बैठ गया। नहीं, यह नहीं हो सकता, फहद ने हैरत से पूछा। आप इसे जानते हैं? बूढ़े ने लरजती आवाज में कहा, ये मेरा छोटा भाई है, उसने मेरी बेटी को मारा। इतने में वीडियो अचानक बंद हो गई। फोन की स्क्रीन पर सिर्फ एक जुमला नमूदार हुआ, वो जान चुका है कि तुमने सच देख लिया। उसी लम्हे उस घर के मेन दरवाजे के जोर से बंद होने की आवाज आई। कोई शख्स घर के अंदर दाखिल हो चुका था और बूढ़े के चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा था। वो धीरे से बोला, वो आ गया। नीचे से आहिस्ता आहिस्ता कदमों की आवाज ऊपर आने लगी। हर कदम के साथ लकड़ी की सीढ़ियां चिरचिरा रही थी। बूढ़े ने फौरन कमरे की लाइट बंद कर दी। पूरा कमरा तारीकी में डूब गया। सिर्फ खिड़की से आने वाली बिजली की चमक चंद लम्हों के लिए हर चीज को रोशन कर रही थी। अचानक कमरे के बाहर किसी ने रुककर दरवाजे का हैंडल घुमाना शुरू किया। दरवाजा बंद था। फिर एक आवाज आई, भाईजान, मुझे मालूम है कि आप अंदर हैं। बूढ़े के चेहरे का रंग जर्द पड़ गया। ये वाकई उसका छोटा भाई था, सलीम, लेकिन उसकी आवाज में अजीब सी सर्द महरी थी।
जिस लड़के को आपने अंदर छुपाया है वो वीडियो देख चुका है ना? फहद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बूढ़े ने आहिस्ता से सरगोशी की, खामोश रहना, शायद वो चला जाए। मगर अगले ही लम्हे दरवाजा एक जोरदार लात से टूट गया। सलीम अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में टॉर्च थी। रोशनी सीधी फहद के चेहरे पे पड़ी। दोनों की नजरें मिली। सलीम हल्का सा मुस्कुराया। तो तुम आखिर यहाँ तक पहुंच ही गए। फहद ने फौरन कुर्सी उठाकर सलीम की तरफ फेंकी और बूढ़े के साथ कमरे से बाहर भागने लगा। पूरे घर में भागते हुए उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे घर के अंदर रास्ते बदल रहे हों। जो दरवाजा अभी उनके सामने था अगले ही लम्हे गायब हो चुका था। जो राहदारी सीधी थी वो अचानक लंबी हो जाती है। अचानक फहद एक आईने के सामने रुका। उसने एक लम्हे के लिए अपना अक्स देखा, लेकिन आईने में सिर्फ वो नहीं था, उसके पीछे मरियम खड़ी थी। उसने सिर्फ एक लफ्ज कहा, छत। फहद फौरन सीढ़ियां चढ़कर छत पर पहुंच गया। बूढ़ा भी उसके पीछे था, मगर सलीम भी उनके ताकुब में आ चुका था। बारिश अब तूफान बन चुकी थी। छत पर खड़े होते ही फहद का फोन खुद ब खुद बज उठा। स्क्रीन पर वही ऐप खुल गई। उसमें लिखा था, राइड स्टेटस इनकम्प्लीट, फाइनल पैसेंजर वेटिंग। फहद हैरान रह गया। अभी भी राइड खत्म नहीं हुई। उसी लम्हे छत के एक कोने में मरियम की धुंधली शक्ल नमूदार हुई। उसने फहद की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, जिस शख्स ने मुझे मारा वो अकेला नहीं था, एक और शख्स भी उस रात गाड़ी में मौजूद था। फहद कुछ पूछने ही वाला था कि मरियम ने कांपते हुए हाथ से इशारा किया, और वो इशारा सलीम की तरफ नहीं बल्कि बूढ़े की तरफ था। फहद के कदम वहीं रुक गए। क्या? बूढ़ा खामोश खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। वो धीरे से बोला, मैंने उसे अपने हाथों से नहीं मारा, लेकिन मैंने सच छुपा लिया था। उसी लम्हे आसमान में जोरदार बिजली कड़की और पूरी छत एक लम्हे के लिए रोशन हो गई। रोशनी खत्म होते ही बूढ़ा गायब हो चुका था और फहद के पीछे किसी ने सरगोशी की। अब आखिरी मंजिल बाकी है। छत पर सिर्फ फहद, सलीम और मरियम की धुंधली परछाई बाकी थी। बारिश तूफान में बदल चुकी थी। अचानक फहद के मोबाइल पर आखिरी नोटिफिकेशन नमूदार हुई, राइट कंप्लीट, गो टू फाइनल लोकेशन। उसके साथ एक नई लोकेशन जाहिर हुई, हादसे वाली जगह, कब्रिस्तान रोड। जैसे ही फहद ने नक्शे पर स्टार्ट दबाया, उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया। चंद लम्हों बाद वो दोबारा उसी सड़क पे खड़ा था जहाँ से ये खौफनाक सफ़र शुरू हुआ था, लेकिन इस बार वहाँ पुलिस की कई गाड़ियाँ खड़ी थीं। कुछ लोग ज़मीन खोद रहे थे। फहद ने एक पुलिस वाले से पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? पुलिस वाले ने हैरत से जवाब दिया, एक गुमनाम कॉल आई थी, यहाँ एक लाश दफन है। कुछ ही लम्हे बाद बेल्टे से एक पुराना सफ़ेद बैग निकला, वही बैग जो मरियम के हाथ में था। उसके साथ कुछ हड्डियाँ और एक टूटा हुआ मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ। तहकीकात शुरू हुई। डैश कैम की वीडियो, मोबाइल का डेटा और दीगर शवाहिद सामने आए। सलीम को गिरफ्तार कर लिया गया। बूढ़े ने भी अदालत में एतराफ़ किया कि उसने खौफ और दबाव की वजह से हकीकत छुपा दी थी। केस जिसे 1 साल पहले हादसा करार देकर बंद कर दिया गया था, वो दोबारा खोल दिया गया। 3 माह बाद फहद ने राइडर की नौकरी छोड़ दी। वो उस रात के बाद कभी रात में बाइक नहीं चलाता था। एक दिन उसने अपना पुराना फ़ोन ऑन किया ताकि कुछ तस्वीर देख सके। हर चीज़ मामूल के मुताबिक थी, मगर अचानक वही राइड ऐप खुद ब खुद खुल गई। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, थैंक यू, इंसाफ दिलाने के लिए। ये पैगाम चंद सेकंड बाद गायब हो गया और उसके बाद ऐप हमेशा के लिए फ़ोन से डिलीट हो गई। फहद ने सुकून का सांस लिया। उसे लगा सब खत्म हो चुका है, मगर उसी रात एक नए बाइक राइडर के फ़ोन पर रात 2:47 पर नोटिफिकेशन आई, पिकअप किरियार्ड रोड, पैसेंजर अननोन। उस नौजवान ने मुस्कुराकर राइड कबूल कर ली और दूर अंधेरे में काला अबाया पहने एक साया आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ रहा था।